السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب کیا بات ہے، ناراض دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہم ناراض نہیں ہیں، مگر اب جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ ہم آپ کے اس مجمع میں اب بالکل نہیں بیٹھیں گے۔ پہلے جو جہاں بیٹھے وہاں پہ جو گفت و شنید ہوئی وہ ساری ہم رپورٹ جمع کروائیں گے کورٹ میں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ بیٹھ رہے ہیں یا نہیں۔ بس شاہ صاحب وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ تو بیٹھیں۔ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں؟ آپ ہمارے فرسٹ کزن ہیں۔ نہیں، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ بھائی آپ کا تعلق بے شک ملتان سے ہو، ازبکستان سے ہو، تاجکستان سے ہو، ترکمانستان سے ہو، ہم کسی سے بھی اب بات نہیں کریں جب تک ہماری مذاکرات کی بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ ہم اب کسی سے بات نہیں کریں۔ اچھا شاہ جی آپ عوام سے اتنا دور ہو گئے ہیں، اتنی دوری اچھی نہیں ہے۔ دوریاں وے دوریاں ہو دوریاں وے دوریاں، ایک پاسے مذاکرات دوجے پاسے مجبوریاں، دوریاں وے دوریاں ہو دوریاں وے دوریاں۔ ایسا کچھ مت کہیے کہ ہمارے آنسو دکھلائے۔ شاہ جی تشریف رکھیں۔ بھائی تشریف ہم یہاں رکھ لیں، ارے وہاں یہ ہم وہاں نہیں تشریف رکھیں، کیوں؟ چونکہ جب تک مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہم کہیں کسی کرسی پہ نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے شاہ جی یہیں بیٹھیے، لیکن مذاکرات کے بارے میں تو کچھ بتائیے، معاملہ کہاں تک پہنچا؟ فرید صاحب ویسے تو ابھی سلسلہ ہائے گفت و شنید جاری ہے، لیکن گفت سے زیادہ شنید کے معاملات کو خراب کر رہے ہیں۔ اچھا شنید ہے کہ خواجہ آصف، احسن اقبال، جاوید لطیف ٹائپ لوگ ماحول کو پیچیدہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے بڑے کھلے دل سے مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا گوارا کیا، اور سچ پوچھیں تو کئی موضوعات پہ اتفاق رائے سے بات آگے بڑھنا بھی شروع ہو گئی تھی، مگر یہ جو 2-3 شدنیاں ہیں ان کی وجہ سے اتفاق رائے بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ مثلاً اتفاق رائے کن کن باتوں پہ ہوا شاہ صاحب؟ بھائی کئی بڑی اہم باتوں پہ اتفاق رائے ہوا۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ بسکٹ چاکلیٹ کی جگہ کریم والے ہوں تو زیادہ موضوع ہیں۔ ہم چاکلیٹ کے موقف سے فوراً دستبردار ہو گئے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وحید مراد کے بعد شاہ محمود کو ہی چاکلیٹ سیاستدان کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ ہمارے تمام عزیز و اقارب ہمیں چاکلیٹ ہیرو کہہ کے پکارتے، لیکن وسیع تر مفاد میں ہم یک جنبش لب کریم والے بسکٹ پہ رضامند ہوئے، بہت اچھے۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی بسکٹ کھول کے کریم چاٹنا بھی چاہے تو ہمیں چندہ اعتراض نہیں۔ ہاں البتہ کریم چاٹ کر بسکٹ واپس نہ رکھا جائے۔ شاہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں کہ کوئی چائے پارٹی ہو رہی ہے؟ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ انتہائی اہم معاملات ہوتے ہیں۔ آپ کیا جانیں، غوری کیا جانیں، چاکلیٹ دا سواد۔ شاہ صاحب اور کن باتوں پر اتفاق ہوا؟ بھائی انہوں نے کہا کہ چائے سٹرونگ ہونی چاہیے، ڈبل پتی مار کے۔ ہم نے اتفاق کیا، ورنہ ہم تو دودھ پتی کے شیدا ہیں۔ اس طرح ہم نے اس مشکل امر پہ بھی اتفاق رائے کو اہمیت دی، اور انہوں نے کہا کہ اے سی کو 26 پہ رکھ کے چلایا جائے۔ فرید ہم نے اپنے ماتھے پہ پسینے کے ٹمٹماتے ہوئے قطروں کو نظر انداز کرتے ہوئے 26 پہ سر تسلیم خم کیا۔ کیا کہنے شاہ جی، واہ واہ واہ۔ اس سے زیادہ ہم کیا لچک دکھاتے، بھائی اتنی لچک تو سپرنگ والے میٹرس میں بھی نہیں ہوتی۔
इतनी लचक तो हेयर बैंड वाले रबड़ में नहीं होती, बल्कि इतनी लचक तो आइटम सॉन्ग करने वाली लड़की की कमर में भी नहीं होती। शाहजी क्या कहने। अच्छा शाह जी, पीडीएम की तरफ से अगर जावेद लतीफ, ख्वाजा आसिफ, मौलाना फजलुर रहमान ये अगर मुज़ाकरात के हामी नहीं है, तो आपकी तरफ से भी तो इमरान खान साहब के बयानात कुछ हौसला अफजा नहीं है। देखिए देखिए, बात वो कीजिए जो करने वाली है। देखिए, हम कौम को हेजानी कैफियत से निकालना चाहते हैं, और इसके लिए इमरान खान ने हमें मुकम्मल मैंडेट दिया है। ये तो इम्मी का भी डिप्रेशन है जो वो उगल देते हैं। अच्छा, क्योंकि बाजार ये आसार नुमाया है कि अहलियाने पीडीएम मुज़ाकरात को ताहीरी हरबे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात भी गाहे गाहे महसूस की कि मुज़ाकरात में जहां भी कोई अहम मोड़ आता है तो मुज़ाकराती टीम में से किसी की चीची खड़ी हो जाती है, वो उठ के वॉशरूम में चला जाता है। इसी तरह फरीद, मुज़ाकरात के दौरान हमें महसूस हुआ, दावा नहीं करते, शक भी नहीं करते, अच्छा, मगर महसूस हुआ कि एक मेंबर जो हमारा मुखालिफ था, एक मेंबर मोबाइल पे पबजी गेम खेल रहा था। अब हम उस फर्द का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। शाह साहब उसका नाम बता दें जो पबजी खेल रहा था। देखिए, नाम हम इसलिए नहीं बताना चाहते कि हमें 100% यकीन नहीं है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट और उसके वो जो बार बार अल्फाज कहे जा रहे थे, उसके मुंह से जो निकल रहे थे, ये चीज वो मारा। इन अल्फाज से शक के एहसास को तकवीयत जरूर मिली। इन अल्फाज से आपने अंदाजा लगा लिया कि वो पबजी खेल रहा था। शाहजी, आप चंद दिनों में ही मुज़ाकरात से दिल बर्दाश्त हो गए हैं। ये हमारे चैनल पे तो वासे चौधरी और इफ्तिखार ठाकुर कई सालों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है, हम भी वहां अपने मुज़ाकरात में जुगती हो जाएं और ठाकुर की तरह हम भी ये करना शुरू कर दें? अजीब बात कर रहे हैं आप। शाह साहब कोई ख्याल करें, ये क्या करना शुरू हो गए आप? ये हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो जो आपका मुज़ाकरात में लूडो वाला सांप है वो ऐसे करता है। अच्छा छोड़ें इन बातों को। शाह साहब ये बताएं, आप कहते हैं उनका एजेंडा जाती है, आपका एजेंडा कौमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बजट का राग अलाप रहे हैं, जी जी, असल में ये गैर फित्री बजट देकर हमारे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाना चाहते हैं और अपने जाती मफाद के लिए इलेक्शन बजट से पहले पेश करने का सोच रहे हैं। मगर ये बात तो नून लीग भी कहती रही है कि आप लोगों ने उनकी आखिरी जो बजट दिया उसमें उनके लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। उन सुरुंग सुरुंग लड़े थे बिस्किन्नू चढ़े। देखिए, हम शरीफ लोग हैं, हमारी सुरंगें जो हैं वो सिल्ली हैं, उसमें से सिर्फ ठुस की आवाज आएगी, वो भी इनका तरा निकालने के लिए। भाई ये तो बाकायदा बजट पेश करके ठा ठा करना चाह रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ शाह साहब कि डेडलॉक तो फिर वहीं का वहीं है। भाई हम तो कह रहे हैं अगर डेडलॉक है तो इसे किसी तरीके से खत्म होना चाहिए। इसके लिए हम तो ये कहेंगे कि लॉक मास्टर को आगे होना पड़ेगा, जो देख रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हमने तो मीटिंग में ज़हन में आई हुई अच्छी सी अच्छी जुगत भी मुंह से नहीं निकाली कि कहीं संजीदा मुज़ाकरात में लाफ्टर ना आ जाए। हालांकि आजम नजीर तारड़ को देख के हमारे जहन में एक जुगत आई थी कि इस तरह दे चौधरी
फंक्शन दे अखीर ते डांसर नाल रट्टा डाल लेंदे ने ताकि डांसर दी पेमेंट मार लें। अगर हमने वो जुगत नहीं की सिर्फ इसलिए कि मुज़ाकरात की संजीदगी कहीं मजरू ना हो। लेकिन फरीद ये अच्छा तर्ज अमल नहीं दिखा रहे। अब देखिए चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पे जो कुछ किया गया, उसके बाद साफ दिखाई दे रहा है कि ये मुज़ाकरात की जगह मुक्कालात पे अमल पैरा है। हम आखिर कितने मुक्के और कितनी लातें खाते जाएंगे। लेकिन शाह साहब, वफाक ने तो इस सारे मामले से लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार किया है। भाई अच्छी लाइल्मी है, यानी जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। आगे शाह जी, आगे जी, आगे। मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं भाई, आप खुद ही बैठिए इस सीट पे। शाह जी साहब सोफे पे कराया चाहिए, था तशरीफ लेकर आइए। आपने सारी बातें बैठे बैठे यहाँ कर दी। इधर इधर आइए। उत्थे भी बहन है, इत्थे भी बहन है। नहीं आइए। उंज भी असी अजकल थड़ियां ते ही हां। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਜੇ पहले बताओ आप लोगों ने इधर शो क्यों शुरू किया? अगर इस तरह का घर इस मोहल्ले में है तो आपको ये मोहल्ला फौरन छोड़ देना चाहिए। शाह जी फिक्र ना करो, बाकी सारे घर पीटिए ही देने। ये हुई ना बात। जो असल है हकीकत वो बताइए। और शाह जी इस घर दे च रूहां आंदियां ने। तो बताओ तो सही। गो हम कुर्सी के दिलदादा नहीं, सिर्फ अवामी खिदमत के कायल हैं। मगर जो मोहल्ले के हालात हैं इस वक्त कुर्सी बहुत जरूरी है। अच्छा शाह साहब, फिर ये तो बताएं कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात हो रहे हैं। फरीब, इन हुक्मरानों की नीयत और हरकत देख के हम क्या कह सकते हैं? हमने तो खुद एक इंतहाई अहम आदमी से पूछा कि ये तो बता दीजिए इलेक्शन कब हो रहे हैं। वो कहने लगे गड्डी तू मगा ले तेल में पुआनिया जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनिया।